નમસ્કાર. રિયલ ન્યૂઝ ચેનલના આ વિશેષ સ્ટુડિયોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ન્યુરો લિંગ્વિસ્ટિક પ્રોગ્રામિંગ એક એવી પરિભાષા કે જે જીવનને ઊંચા શિખરો સુધી લઈ જતી હોય છે. સામાન્ય વ્યક્તિઓને આ પરિભાષા સુધી, આ ભાષા સુધી પહોંચવા માટે ઘણા વર્ષો અને ક્યારેક જિંદગી પણ થઈ જતી હોય છે. એવા સમયે અમે આપ સૌની સુધી એક એવી સરસ મજાની ભાષાનું માળખું લઈને એક સરસ મજાની સિરીઝ લઈને આવ્યા અને સિરીઝની આજે ત્રીજી કડી છે. આપ સૌનું જીવન સુખમય બને, આપના જીવનમાં સુખના પ્રસંગો વધતા રહે, આપના બિઝનેસમાં વૃદ્ધિ થાય, આપના બાળકો સરસ રીતે અભ્યાસ કરતા થાય, આ બધી જ નાની નાની વાતો થકી જીવનને સુંદર બનાવવા માટેનો આ રિયલ ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા એક સુંદર મજાનો પરિશ્રમ, સુંદર મજાનો એક કાર્યક્રમ રહ્યો છે. તો આપ સૌ માટે આજે વધુ એક ત્રીજી કડી લઈને આવ્યા છીએ અને આ કડીમાં પણ આપણી સાથે દેશના સૌથી વધુ વ્યસ્ત NLP કોચ શ્રી રામ વર્માજી ઉપસ્થિત છે. સ્વાગત है आपका वर्मा साहब. જ્યારે એક પરિવારની વાત આવતી હોય છે ત્યારે એક પરિવારમાં પારિવારિક મૂલ્યોનું મહત્વ અનેક ગણું હોય છે. માતા પિતાના બાળકો સાથેના સંબંધો, કારણ કે દરેક માતા પિતાની એવી ઈચ્છા હોય છે કે પોતાનું બાળક મહાન બને, સર્વોત્તમ શિખરો સજ્જ કરે. આ માટે દરેક માતા પિતા પોતાના બાળકોને શાળા સુધી તો પહોંચાડી દેતા હોય છે, પણ ત્યાર પછીની ઘણી એવી ફરજો હોય છે કે જે ફરજોથી કદાચ તેઓ અવગત જ હોતા નથી. એ ફરજો એમની જાણકારીમાં જ હોતી નથી. જો નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન બાળ ઉછેરમાં રાખવામાં આવે તો ખરા અર્થમાં બાળકો જેવા આપણે ધાર્યા હોય એના કરતાં પણ સરસ ઉજળા બનીને બતાવતા હોય છે. કઈ બાબતોનું સંચરણ બાળકોની અંદર સુંદર રીતે થઈ શકે છે એ વિશે આજે ચર્ચા થશે. આ સાથે સાથે પતિ અને પત્ની વચ્ચેના સંબંધો પણ ખૂબ જરૂરી હોય છે. જ્યારે એક સુંદર જોડકું એકબીજાને સમજીને રહેતું હોય ત્યારે એમનું જીવન ખરેખર એક બગીચા જેવું બની રહેતું હોય છે. પણ જ્યારે એમાં નાની નાની વાતોમાં સંઘર્ષ ઊભો થાય ત્યારે એ બગીચો વેરાન બનતો હોય એવું દ્રશ્યમાન થતું હોય છે. આથી પતિ પત્ની વચ્ચેના સંબંધો પણ ખૂબ સુંદર બની રહે તે જરૂરી હોય છે. આ સાથે માતા પિતા અને બાળક વચ્ચે જ્યારે બાળક મોટું થઈ જાય છે ત્યારે પોતાના માતા પિતાને કેવી રીતે સાચવે, સાસુ સસરા અને વહુ વચ્ચેના સંબંધો કેવા હોઈ શકે છે. ટૂંકમાં સંબંધો થકી જીવન બનતું હોય છે. માણસ પૈસો અને સમૃદ્ધિ ગમે એટલી મેળવી લે, પણ જો ઘરે રાત્રે આવી અને તેને હાશકારો થતો હોય તો જ એ સાચું ઘર કહેવાય. માણસ ગમે એટલો કામમાંથી થાકી ગયો હોય પણ એને ઘરે ઝડપથી પહોંચવાનું મન થાય તો જ એ ઘરની પરિભાષામાં ઘર સાચું ઠરતું હોય છે. તો કેવું એ ઘર હોઈ શકે છે, કેવા એ સંબંધો હોઈ શકે છે, આવી બધી સરસ મજાની વાતો આજના કાર્યક્રમમાં થનાર છે. આપને ખાસ જણાવવાનું કે જો આપને ચર્ચા દરમિયાન કોઈ પ્રશ્નો મૂંઝવતા હોય તો આપ સ્ક્રીન પર દેખાતા અમારા ફોન નંબર 8866605666 પર સંપર્ક કરી શકો છો અને આપને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તરો મેળવી શકો છો. આ સાથે આ પ્રોગ્રામ સિરીઝની આગળની બે કડી યુટ્યુબ ચેનલ પર, યુટ્યુબની રિયલ નેટવર્ક ચેનલ પર પ્રસારિત થઈ ચૂકી છે. આપ યુટ્યુબ પરથી પણ નિહાળી શકો છો. આજની ત્રીજી કડી પણ આપ આવતીકાલ બાદ યુટ્યુબ चैनल पर निहाળી શકશો. कार्यक्रम की शुरुआत करिए. फिर से एक बार वर्मा जी, तहे दिल से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है. धन्यवाद. हमने NLP के बारे में पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं, मगर फिर भी आज पहली दफ़ा हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको कृपया आप NLP का बड़े शॉर्ट में छोटा सा NLP क्या होता है उसके बारे में बता दें. NLP की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, लिंग्विस्टिक कैसे हमारे मस्तिष्क में जो भी परसेप्शन आते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन या संवाद में बदलते हैं, किस तरह से हमारे कुछ एक बिहेवियर, हमारे पैटर्न प्रोग्राम हो जाते हैं जिनके हम कई बार शिकार हो जाते हैं. NLP इन सब चीज़ों का एक पूरा अध्ययन करती है और इसमें करीब 15-16 चैप्टर्स हैं जिनके वजह से आप अपने बिजनेस को, आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पैसे को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं. पिछली 2 कड़ियों में हमने सारी बातों को पहली कड़ी में बुन लिया था और फिर दूसरी कड़ी में हमने कैसे बिजनेस में सफल बना जाए इस बातों पर चर्चा की थी. आज की इस कड़ी में हम अपने फैमिली वैल्यूज़ और पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला पेरेंटिंग में NLP का क्या रोल है उसे आप बताएं. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कि हम
इस तरह से अपने बच्चों की पेरेंटिंग करें, उनकी परवरिश इस तरह से करें कि वो जीवन में एक अच्छे नागरिक बने, उनको जो चैलेंजेस हैं, जो आज चुनौतियाँ आ रही हैं वो ना आए जीवन में। आज चुनौती आ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, एंग्जाइटी के, डरों के, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जिनकी वजह से वो अपने जीवन को नहीं चला पा रहे हैं। आज अगर आप ये देखेंगे कि हमारे देश में बच्चों को इतने तनाव आ रहा है, आपको मैं एक छोटा सा अगर जानकारी दूं, एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हर घंटे में एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है आगे बढ़ने की, असलियत में उसे अपनी पोटेंशियल को निखारने का मौका ही नहीं मिलता। उसे यही नहीं पता चलता कि उसको किस तरह से अपनी पोटेंशियल, आपके अंदर आंतरिक शक्ति को कैसे निहारे। ऐसे में पेरेंटिंग एक बहुत ही मेन इशू बन जाता है। आज हम उस दौर में नहीं गुजर रहे हैं कि बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, बड़े हो जाएंगे। आज उनके सामने चुनौती है, उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन तक वो पहुंच सकते हैं, और जहां तक उन तक पहुंचेंगे वो, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में गड़बड़ कर सकती हैं। ऐसे में एनएलपी और पेरेंटिंग उनके लिए बेहद ज़रूरी है। एनएलपी चूँकि एक कम्युनिकेशन, एक संवाद की एक कला है, तो जितना बेहतर संवाद आप अपने बच्चों से कर रहे होंगे उतना ही वो आगे बढ़ रहे होंगे, और वो कम से कम डिप्रेशन, कम से कम स्ट्रेस, तनाव, एंग्जाइटी, डर और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आकर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में, अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहे होंगे। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को पढ़ने में माहिर बने, बस बाकी कुछ करे या ना करे, उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है। कोई कोई परिवार ऐसे रहते हैं कि जो बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करें, मगर कई परिवारों में ऐसा होता है कि बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई के लिए, और कई परिवारों में जब पूरी छूट दी जाती है तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई परिवार ऐसे भी डरते हैं कि अगर कुछ करना बैठे उसे कह दिया तो। इन सारी चीज़ों के बीच हम बच्चों को एनएलपी के नज़रिए से किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, आप इस तरह से देखिएगा, आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है वो 3 स्टेजेस से, 3 स्तरों से गुजरता है। पहला है चाइल्ड स्टेट या चाइल्ड का लेवल। जब आपका बच्चा 8 या 9 साल तक है, वो एक चाइल्ड स्टेट में है, चाइल्ड की यानी कि बच्चे की दशा में है। इस दशा में उसके पास एक सवाल होता है, क्या और क्यों। वो आपसे एक सवाल पूछता है जगह बार बार, ये क्या है। वो कोई भी चीज़ देखता है, ये क्यों है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है। वो अपने दुनिया को फॉर्म कर रहा है उस वक्त, उसकी दुनिया की फॉर्मेशन, यानी कि उसकी दुनिया जन्म ले रही है उसके मन के अंदर, और वो अपने चित्रों को भर रहा है। हर चीज़ को वो देखता है और एक सवाल पूछता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये क्यों है। और वो चाइल्ड स्टेट में उसके पास दूसरी जो मानसिक दशा है वो डिपेंडेंट की है, यानी कि वो आप पर निर्भर करता है। उसे हर चीज़ करने के लिए आपका सहारा चाहिए, सड़क पार करनी है, उसे बुक्स लानी है, उसे किताबें पढ़नी है। ऐसे में आपको जब पेरेंटिंग करें तो इस कुछ चीज़ को समझना होगा कि आप उसके क्यों और क्या का जितना अधिक संवाद करेंगे वह आपके साथ उतना ही जुड़ेगा। इसके बाद बच्चा जो है टीनेज स्टेट में आता है। टीनेज का मतलब है जब 13, 14, अब ये थोड़ा सा उम्र घट गई है, 10 साल का बच्चा काफ़ी मैच्योर हो जाता है। ऐसे में वो क्या को जगह या क्यों की जगह क्यों नहीं आ जाता है। आप उसे समझाते हैं कि देखिए ये काम नहीं करना है, तो वो सवाल आपसे पूछेगा क्यों नहीं करना है। आप कहेंगे भाई देर तक शाम को नहीं रुकना है, आप वो कहेगा क्यों नहीं रुकना है, वाई नॉट। तो उसका जो क्यों था वो क्यों नहीं में बदल जाता है। इस स्थिति में आप अब उसके पेरेंट बनने के बजाय आपको एक दोस्त बनना होगा, क्योंकि अब वो एक डिपेंडेंट यानी कि निर्भर की स्थिति में नहीं है, वो एक आज़ादी की स्थिति में है। वो अपने आप को एक आज़ाद मान रहा है, और ऐसे में अगर आप उसे कोई भी चीज़ थोपेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसे में यहाँ पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों के कितने मित्र हैं। मित्रता का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नज़रियों को भी समझें, साथ ही साथ आप उसे रोक भी नहीं सकते, पर यहाँ पर आप उसे दोस्त बनकर उन चीज़ों को, उन खतरों के बारे में बता सकते हैं कि अगर तुम इन चीज़ों में पढ़ोगे तो आपके पास क्या खतरे आएंगे, आपके जीवन के मूल्य क्या हैं, आपके पारिवारिक मूल्य क्या हैं, आप उनसे किस तरह से उनके गोल्स के साथ जोड़कर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जब वो इस स्थिति से गुजरेगा, पहले वो निर्भर की स्थिति से था, फिर वो आज़ादी की स्थिति में आया, अब इसके बाद वो तीसरी स्थिति में आता है जिसका जहाँ पर ना तो डिपेंडेंस है ना इंडिपेंडेंस है, जहाँ तो वो निर्भर है ना ही वो आज़ादी की बात करता है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ना तो उसके पास वाई है ना ही वाई नॉट है, वो दोनों हैं उसके पास। और वो एक सिटीजन, एक पूरी तरह से यहाँ से एडल्ट बनता है, यानी कि एक वो सचमुच में एक पुरुष बनता है, या वो एक एडल्ट स्टेट में आता है।
और अगर आपका बच्चा एडल्ट स्टेट में आ गया है दोनों परिस्थितियों से गुजर कर, तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक बहुत ही लकी पेरेंट्स हैं और आपकी पेरेंटिंग सही जगह पर गई है, क्योंकि अब वो आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखेगा, डिफरेंट नज़रियों को देखेगा। और यही काम पेरेंटिंग का है कि वो जब चाइल्ड स्टेट में है आपका बच्चा, तो आप किस तरह से उसके साथ जुड़े, जब वो एक टीनेज स्थिति में है तो कैसे जुड़ें, ताकि आपका बच्चा एक बहुत अच्छा सिटीजन बने और अपने लक्ष्यों को पूरा करे और अपनी देखभाल करे। जी, जब एक बच्चा है, बचपन है, जैसे कि आपने पहला स्टेज बताया, तो उसी स्टेज से एक पेरेंट होने के नाते क्या पेरेंट्स की कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसकी वजह से बच्चा है वो बहुत ही अच्छा उसका उछेर हो पाए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे पास एक वर्ड आता है लोकल मॉडल एक्सेलेंस। लोकल मॉडल एक्सेलेंस का मतलब है कि जो हमारे चारों तरफ वातावरण में हो रहा है, हम वहीं से अपनी एक्सेलेंस, अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी खासियत को ले लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप किस तरह से चीज़ों को रेस्पॉन्ड करते हैं, आपका बर्ताव क्या है, आप किस तरह से अपने गुस्से को प्रकट करते हैं, किस तरह से आप अपने फंक्शंस को मनाते हैं, किस तरह से आप सच या झूठ बोलते हैं, इन सब चीज़ों को आपका बच्चा बहुत ही अर्ली स्टेज में आपको देख रहा होता है। इसे हम मॉडलिंग कहते हैं एनएलपी में। वो असलियत में आपको मॉडल कर रहा होता है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कि बच्चा बेसिकली आप ही का एक्सटेंशन है, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे से पहले, मेरे विचार से और मेरी दृष्टि से तो बच्चे से पहले उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग होना ज़रूरी है। जब बच्चा छोटा है तो उसके पास जितना भी वर्ल्ड है, जो भी उसकी दुनिया है, वो अपने पेरेंट्स से, आसपास की चीज़ों से ले रहा है। पेरेंटिंग करते हुए आप देखें कि कोई ऐसे प्रोग्राम तो वो नहीं देख रहा है, वो ऐसी मैगजीन तो नहीं पढ़ रहा है, वो ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जहाँ पर उसका वर्ल्ड पूरी तरह से, उसकी आंतरिक दुनिया बिगड़ रही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसकी पेरेंटिंग करनी होगी। जी, किस तरह से हो सकता है ये? पेरेंट्स किस तरह से ये काम कर सकते हैं बाखूबियत के साथ? हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स उन्हें समय दें। आजकल हम एक शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, उसका नाम है क्वालिटी टाइम। मेरे विचार से टाइम की, जब भी आप रिश्तों की बात करेंगे तो टाइम की क्वालिटी नहीं होगी, आपकी क्वांटिटी की बात करनी होगी। आपका बच्चा आपके साथ कितनी देर तक रहना चाहता है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आप चलिए मैं आपको क्वालिटी टाइम दे रहा हूँ, आपका टाइम शुरू अब होता है और 15 मिनट के लिए आपका क्वालिटी टाइम है। नहीं, हो सकता है आपके बच्चे का जोन ही आपके साथ खेलने का 15 मिनट बाद आए और वो आपके साथ 1 घंटे तक, 2 घंटे तक जुड़ना चाहता है। पर आप ये कहेंगे कि आपके पास बिजनेस है, आपके पास नौकरी है, आपके पास ऑफिस है, आप दोनों लोग काम करते हैं, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर आपके बच्चे को क्वालिटी टाइम या क्वांटिटी टाइम दोनों ही नहीं मिल रही है। मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चे को क्वांटिटी टाइम दें और उसके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब पेरेंट्स को देना होगा शुरू में। और वो जो सवाल हैं वो बहुत बचपन में उसके पास आएंगे। उसका क्यों डेवलप हो रहा होगा, वो एडवर्टीजमेंट देख रहा होगा अखबारों में और डिफरेंट पिक्चर्स को देख रहा होगा अखबारों में या टीवी पर, उसको आपको किस तरह से समझाना है। ऐसे में आप उसे रोक भी नहीं सकते। उसका जितना आपका तालमेल आपके बच्चे के साथ ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा आपके साथ मज़ा लेगा, आनंद लेगा। दूसरी बात, खास बात यह है कि आपका बच्चा बचपन में, उसके पास एक ही तरह का मस्तिष्क है, वो है क्रिएटिव माइंड। आप एक पेरेंट होने के नाते, आपकी उम्र 25, 30, 40 साल हो सकती है, तो आपका माइंड तो कंप्लीट लॉजिकल या रीजनिंग का माइंड है, तर्क वाला माइंड है। और बच्चे के पास तर्क नहीं है, बच्चे के पास क्रिएटिविटी है। तो आप जब भी बच्चे के साथ जुड़ना चाहें तो बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ें। नई नई तरीके ढूंढें उसे पढ़ाने के, नए तरीके ढूंढें उसे याद कराने के, नए तरीके ढूंढें उसके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। कहानियाँ को हम मेटाफोर कहते हैं। ये कहानियाँ हमेशा डायरेक्टली मन में जाती हैं। तो आपके पास अच्छी कहानियाँ होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल हमारे पेरेंट्स के पास या मॉडर्न पेरेंट्स के पास कहानियों की कमी है। जी, बच्चों पर हमने पहले भी जैसे कि बातें की कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है और बच्चे भी ऐसे हैं कि कभी कभी कहता है कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में पेरेंट क्या करेंगे? हाँ, आपको यहाँ पर एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। मैं आपके बच्चों को 3 तरह से क्लासीफाई कर रहा हूँ, 3 तरह से बता रहा हूँ। एक बच्चे हैं जिनका ब्रेन का, मस्तिष्क का सीखने की कला विजुअल है, यानी कि वो उनका आंतरिक विजुअल माइंड है। वो जैसी चीज़ों को देख लेते हैं तो याद करते हैं। और हमारे समाज में 60% बच्चे ऐसे हैं जो विजुअल ब्रेन के, यानी कि इमेज के माइंड के लोग हैं। जैसे वो चीज़ों को देखते हैं तो याद होता है, इसीलिए उन्हें पिक्चर देखने में, उन्हें कार्टून देखने में बहुत मज़ा आता है।
ऐसे बच्चे को अगर आप रटाकर पढ़ाएंगे, जो हमारे स्कूल में किया जाता है, तो वो बच्चा कभी भी विजुअल होने के नाते बहुत एक अच्छा विजनरी हो सकता है, बहुत बड़ा वो काम लक्ष्य बना सकता है अपने लाइफ के लिए। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जब हम उसे रटाकर पढ़ते हैं तो वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। और अच्छे एक विजुअल जनरेशन के साथ हम एक खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरे बच्चे वो हैं, हाँ, विजुअल बच्चे को अगर आपको पहचानना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसकी आंखें यूजुअली ऊपर की तरफ जाएंगी। जब भी आप उससे कोई सवाल पूछेंगे तो कई बार वो छत की तरफ या आप देखेंगे पंखे की तरफ देखने लगेगा। उसकी आंखें लेफ्ट अप या राइट अप यानी कि ऊपर की तरफ देखेगा वो। कई बार ये बच्चे बहुत तेज़ी से बोलेंगे। तेज़ी से बोलते हुए कई बार ये अपने हाथों का बहुत प्रयोग करेंगे। समझ लीजिए ये बच्चा विजुअल माइंड का बच्चा है, इसे कृपया विजुअल फॉर्म में पढ़ाइएगा। दूसरी कैटेगरी है आपके बच्चे की ऑडिटरी, यानी कि वो ध्वनि वाले माइंड का मास्टर है। तो ये लोग रटने में बहुत अच्छी तरह से काम कर लेते हैं, पर गड़बड़ कई बार ये होती है कि ये स्पेलिंग्स को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स में जैसे शब्द लिखे जाते हैं वैसे पढ़े नहीं जाते या वो बोले नहीं जाते। तो वो वर्ड्स को बेसिकली साउंड से पकड़ रहा है, तो उसका विजुअल चूँकि माइंड कमज़ोर हो सकता है तो वो गड़बड़ करेगा। और तीसरा बच्चा है फीलिंग वाला बच्चा। फीलिंग वाले बच्चे की आंखें राइट डाउन जाएंगी, दाहिनी तरफ जाएंगी, और कई बार वो आपको बात करते हुए अपने आप को टच कर रहा होगा, अपने आप को छू रहा होगा। कई बार वो अपनी मसल्स को, अपने हाथों को, अपने पैरों को दबा रहा होगा। ये बच्चा थोड़ा स्लो लर्न करता है। ऐसे बच्चों को हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश स्लो लर्नर कहा जाता है, लेकिन ये बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस चीज़ को एक बार ये लर्न कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स के द्वारा, बहुत लंबे समय तक करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बाकी देशों में इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हमारे देश में तीनों तरह के बच्चों को एक ही तरह का टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे में बात नहीं बनेगी। आपके अपने बच्चों को मोड को समझिए। NLP आपके बच्चों को बता देगी कि किस ब्रेन का बच्चा है, और उसी तरह से आप उसकी परवरिश करें। विजुअल बच्चे के साथ तेज़ी से बोलें, बच्चों के साथ हमेशा तेज़ी से बोलते हुए वॉल्यूम अपनी आवाज़ को ऊंचा करें। ऑडिटरी बच्चे के साथ हमेशा आराम से बोलिए, बीच में छोटे छोटे गैप दीजिए, कभी ऊंचा मत बोलिए, ना ही बहुत नीचा बोलिए। लेकिन अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक यानी ये फीलिंग वाला है तो कृपया कभी भी उसे तेज़ी से मत बोलिएगा, वो आपसे डरने लगेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे में आपकी पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पालने से पहले NLP के इस चैप्टर को जरूर लर्न कर लें कि कैसे विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग वाले बच्चे को पढ़ाया जाए, उनके साथ परवरिश करी जाए। आपने एक बात बताई, स्लो लर्निंग या लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको किस तरह से देखा जाता है और उसमें किस तरह से NLP है मदद कर सकती है? देखिए, हमारे जो कंटेंट्स हैं स्टडी के, वो अधिकांश विजुअल में हैं। खेलने का अलग पीरियड होता है, लेकिन अगर आप देखें पढ़ाई के जितने भी कंटेंट्स हैं हमारे, वो सारे विजुअल फॉर्म में हैं। आपको स्पेलिंग्स को याद करना ही होगा तो देखनी होगी, वैसे ही आपको स्पेलिंग्स के साथ साथ फॉर्मूले हैं, उसी तरह से केमिकल इक्वेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं। इस तरह से जब भी आप अपने कंटेंट्स को देखेंगे तो अगर आपका विजुअल माइंड एक्टिवेट नहीं किया गया है गलती से, आपके पास है सारी पोटेंशियल, लेकिन हमारे स्कूल्स में इस तरह की तकनीक नहीं सिखाई जाती कि कैसे वो विजुअल माइंड को आप अपने चित्र के माइंड को स्ट्रोंग कर ले, तो ऐसे में बच्चा स्लो लर्नर कहलाएगा। सारी दुनिया उसको एक ब्रांडिंग दे देगी, उसका नाम दे देगी कि स्लो लर्नर है, बाकी वो स्लो लर्नर नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जितने फीलिंग वाले बच्चे हैं वो उसको उनका जो लर्न करने का तरीका, चूँकि वो फीलिंग से करते हैं तो वो एक अपना समय लेते हैं। पर इसमें गड़बड़ ये होती है कि अगर वो विजुअल माइंड के टीचर से पढ़ रहा है तो विजुअल माइंड का टीचर बड़ी तेज़ से बोलेगा, वो आगे तक निकल जाएगा, और फीलिंग वाला बच्चा अभी पहले सेंटेंस को ही फील कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन तीनों बच्चों में जो फीलिंग वाला बच्चा है वो देर तक याद रखेगा। उसी तरह से जैसे आप किसी का नाम थोड़े दिन में भूल जाते हैं क्योंकि वो साउंड में पढ़ा था, चेहरा भी 10-20 साल बाद भूल जाते हैं क्योंकि वो इमेज में पढ़ा था, लेकिन कभी भी आप साइकिल चलाना नहीं भूलते अगर आपने एक बार बचपन में साइकिल चला ली है। क्यों? बिकॉज ये अब आपकी फीलिंग में चला गया है, मसल्स में चला गया। सो मस्कुलर बच्चे जितने भी हैं वो थोड़ा स्लो लर्न करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक लर्न कर सकते हैं। NLP इसके लिए पूरा एक आर्ट तैयार करती है कि इस नंबर 1 बच्चे को किस तरह से पहचाना जाए, पहचान कर उस बच्चे को किस तरह से उसकी लर्निंग को बढ़ाया जाए।
ताकि वो अपनी लर्निंग एबिलिटी को तेज़ी से बढ़ाए और लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रखे। જો આપને કોઈ આપના બાળકોના ઉછેર માટે પ્રશ્નો સતાવતા હોય તો આપ ટેલિવિઝન સ્ક્રીન પર જે અમારા નંબર્સ આવી રહ્યા છે એ ફોન નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી અને આપને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવી શકો છો। ફોન નંબર હું રિપીટ કરી દઉં છું 8866605666। ફોન કરી અને આપ આપના બાળકોના ઉછેર માટે મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવી શકો છો શ્રી રામ વર્માજી પાસેથી। સર, पेरेंट्स जो कि जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को बड़ा करने में, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उनके बच्चे उनका कुछ मान नहीं रहे हैं। बताते हैं कि बेटा ऐसे करो, बच्चा मना कर देता है। पापा की बात तो कभी कभार सुन ली जाती है मगर मामा को तो कभी सुनता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ सभी पेरेंट्स से, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही गहरी बात है। आप अपने बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा होता है आपका, कब उसे गोद में उठाते हैं? जब वो आराम से खेलता रहता है, हंसता रहता है, या जब वो रोता है, या वो जब परेशान होता है? आपका जवाब मुझे मिल गया है। मैंने ये सवाल हज़ारों लोगों से पूछा है पेरेंटिंग क्लासेस में। सब लोग कहते हैं कि जब बच्चा रोता है छोटा सा तब हम गोद में उठाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब आपके बच्चों को आपकी गोद चाहिए तो उसे क्या करना होगा? रोना होगा। इसका मतलब है रोने का बिहेवियर किसने डाला है? पेरेंट्स ने। तो याद रखिएगा, बच्चे का जो मना करने का बिहेवियर डाला हुआ है, आपकी बात ना मानने का बिहेवियर डाला हुआ है, वो याद रखिएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी है अगर हम पेरेंट हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, सोचिएगा, एक अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बहुत ही खास और छोटा सा एग्जाम्पल है। आपका बच्चा किसी दिन आपसे कहता है कि पापा या मम्मा मुझसे ये क्वेश्चन या ये आंसर लर्न नहीं होगा, मैं इस एक पेज के आंसर को याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं बेटा आप कर लेंगे, क्योंकि आपने सोचा कि ऐसे ही बोलने से शायद वो मोटिवेट हो जाएगा। नहीं आप इसे कर सकते हैं, नहीं आप इसे कर लेंगे, आप तो अच्छे बच्चे, आप इसे कर लेंगे। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि यही जवाब ठीक है। NLP के नज़रिए से मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आपके बच्चे की इनर रियलिटी, आपके बच्चे की आंतरिक वास्तविकता ये है कि वो याद नहीं कर पाएगा, और आपकी इनर रियलिटी यानी कि आंतरिक जो वास्तविकता वो ये है कि नहीं तुम इसे कर लोगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या दोनों वास्तविकता जो आपकी है और आपके बच्चे की है ये मैच कर रही हैं कि मिसमैच कर रही हैं? ये एक दूसरे के साथ सहमत है कि असहमत हैं? आप कहेंगे नहीं बिल्कुल ये तो डिसएग्री कर रही हैं, ये तो मिसमैचर कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे के मिसमैचर हैं, और हम कभी भी मिसमैचर को लाइक नहीं करते। लेकिन चाइल्ड स्टेट में वो आपकी बात उसको माननी पड़ती, क्योंकि वो एक निर्भर अवस्था में होता है, डिपेंडेंट अवस्था में होता है। पर याद रखिएगा, जैसे उसके साथ टीनेज, जैसे उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं और वो टीनेज में आता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि मेरे घर में ही सबसे ज़्यादा मेरे मिसमैचर हैं, इसीलिए वो आपको मिसमैच करने लगता है। क्योंकि मिसमैचिंग उसने आपसे सीखी है बचपन में, जिसकी आपको जानकारी भी नहीं है। आप ये कहेंगे फिर हम क्या बोलें? यहाँ पर NLP पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाएगी कि कैसे अपने बच्चे के साथ संवाद करें। अगर आपका बच्चा कह रहा है पापा मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मुझसे लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त जब आप इससे पहले कि उसे ये कहेंगे नहीं तुम उसे कर लोगे, उससे पहले कुछ और भी ज़रूरी है कि उसकी आंतरिक वास्तविकता क्या चल रही है, उसे मैं कैसे खोजूं, और उसके अंदर जो इशू चल रहा है, मसला चल रहा है, उस तक मैं कैसे पहुंचूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बच्चे हमारा ही प्रोडक्ट हैं, वो हमारे बिहेवियर को ही कॉपी कर रहे हैं या मॉडल कर रहे हैं। हमारे आसपास के एरिया चीज़ों से ही उन्होंने अपनी दुनिया को बनाया हुआ है। उनके पास अपना कुछ नहीं था, उन्होंने यहीं से सीखा है। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ऐसी विधा को सीखें, ऐसे कम्युनिकेशन की कला को सीखें, ताकि आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पेरेंटिंग दे सकें, उनके भविष्य को संवार सकें, उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्से से बचा सकें। जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि जब बच्चा रोता है तो उसे गोद में लिया जाता है, तो वो बार बार रोने लगता है जब उसे गोद में आना होता है। तो इस सिचुएशन में एक मदर क्या करें? बिल्कुल, अब सोचिएगा कि आप जिस शताब्दी में रह रहे हैं उसमें कभी भी आप सिर्फ पनिशमेंट से यानी कि दंड देकर अपने बिहेवियर को नहीं मनवा सकते। पहले तो ये मानना होगा। आज हमारे बच्चों के सामने टीवी है जिससे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमारे बच्चों के सामने बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके क्लास में 40-50 बच्चे हैं जो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनके पास इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब भी आप बच्चों को बेहतर तरीके से पेरेंटिंग करना चाहें तो आप उसे पनिशमेंट से नहीं, रिवार्ड से भी
मैं तो ये कहता हूँ रिवार्ड से ही उसको हमेशा मोटिवेट करें। पर सवाल उठता है कि कैसे रिवार्ड दें। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ अपनी वर्कशॉप में, मैंने सूरत में भी दिया है, ये वापी में भी दिया है, कि सोचो कि आज आप अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो शाम को भी ब्रश करे अपने दांतों को, और ये बिहेवियर आप चाहते हैं उससे, और आप जानते हैं कि उसके दांतों के लिए और उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। आप एक पहला तरीका ये कह सकते हैं कि आप उसे धमका कर कहें, या एक नसीहत दें, या एक बहुत ही डिक्टेटरशिप में बोलें, अरे तुम शाम को ये किया करो, ब्रश किया करो, तुम्हें ब्रश करना चाहिए। वो आपकी बात सुन लेगा, हो सकता है ना भी बोले। लेकिन एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। तरीका यह है कि जब वो सुबह कोई भी काम कर रहा है या कोई भी अच्छा काम कर रहा है, जो बहुत सारे वो अच्छे काम करता है, वो अपना मुंह धोता है, अपना बैग लगाता है, अपने जूतों को पॉलिश करता है, अपने जूतों के लेसेस बांधता है, वो अच्छी तरह से आपसे बात करता है, या सुबह वो ब्रश ही कर रहा है, उसके पास जाइए और उसे एक बड़े प्यार से रिवार्ड दीजिए। रिवार्ड देने का मतलब ये नहीं कि आप उसे कोई बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे, उसी टाइम आप उसके साथ अच्छा सा चेहरा बनाकर एक अच्छी सी ध्वनि निकालिए, वाह तुम तो बड़े अच्छे लगते हो, तुम तो बिल्कुल हीरो लगते हो, मैं चाहूँगा कि कल आज रात को भी आप इसी तरह से ब्रश करें और रोज़ करें, मैं देखूँगा जब मैं आऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी दिल से निकलेगी ये बात, दिल से निकलेगी, एक्टिंग नहीं, अगर आप दिल से निकालेंगे तो शाम को आपका बच्चा आपको दिखाकर आपको ब्रश करेगा। कई बार वो टूथपेस्ट साथ लाएगा और आपके सामने वो दिखाकर ऐसा कुछ करेगा, देखो मैं इस ब्रश को कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर चूकना नहीं है, यहाँ पर आपको इस पैटर्न को दोबारा डालना है, उसको रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप दोबारा उसे कहिए, वाओ यू आर वंस अगेन ए वंडरफुल चाइल्ड, आपने मेरी बात मानी, अब तो बिल्कुल अब स्टार लगते हो, हीरो लगते हो। अब इस एप्रिसिएशन से, इस रिवार्ड से उम्मीद है कि वो नया बिहेवियर उसको आएगा। हाँ, अगर आप चूक गए तो समझ लीजिएगा वो बच्चा समझ जाएगा कि आपने सुबह भी एक्टिंग की थी, आपको सचमुच में कोई रिवार्ड नहीं देना आता। जब भी आप अपने बच्चों को कोई भी बिहेवियर डालना चाहें, तो जब भी वो अच्छा बिहेवियर करें तो हमेशा उसको रिवार्ड दें, हमेशा रिवार्ड दें, भूलें ना उस वक्त। और रिवार्ड आपकी आवाज़ हो सकती है, वाह, आपका एक हल्का सा टच हो सकता है कि आप उसके कंधों को टच करें, आप उसके हाथों को टच करें, आप उसके सर को पर हाथ रखें, एक बढ़िया सा चेहरा अपना बनाइए ताकि उसे लगे कि जो मैंने किया है उसका रिवार्ड मुझे मिल रहा है। हाँ, कुछ बातें जब वो ठीक नहीं कर रहा है तो आप उसके प्रति थोड़ा सा उदासीन होकर देखिएगा। जैसे ही वो दूसरा बिहेवियर करेगा और वो अच्छा बिहेवियर है, इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करिएगा। अब उसका अवचेतन मन, उसका सबकॉन्शियस मन ये मान लेगा कि जब भी मैं अच्छा कार्य करता हूँ तो मुझे रिवार्ड मिलता है, और वो हमेशा, हमारा माइंड रिवार्ड और पनिशमेंट से हमेशा रिवार्ड को लाइक करता है। बहुत ही बढ़िया बात की आपने। अडाजन एरिया से परिता बेन हमारे साथ जुड़ रही है चर्चा में। उनका ये पूछना है कि उनका बच्चा है वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं देता, ठीक बात है, खाना भी नहीं खाता है अच्छी तरह से। ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीता बहन ने पूछा है। प्रीता बहन, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ। मेरे स्कूल में भी जब पेरेंट्स मुझसे मिलने आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है। मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पिछले 16 सालों से एक बड़ा सा स्कूल चला रहा हूँ मैं भी, जहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। तो 3 के 3000 बच्चों से के पेरेंट्स से मुझे मिलने का अब तो मौका नहीं मिलता, शुरू में मिलता था। तो उनकी हमेशा एक ही शिकायत होती है सभी मदर्स की, और मजा अच्छा बात यह है कि वही शिकायत सूरत में भी है। उनकी एक शिकायत आती है कि एक बच्चा उनका नंबर 1 खाना कम खाता है और दूसरा पढ़ता कम है। यही शिकायत है परिता जी आपकी। मैं बताऊं कि बच्चों के खेलना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके बच्चे पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस को फील कर रहा हो स्कूल में, और उसको डी स्ट्रेस करने के लिए, उसको तनाव मुक्त करने के लिए उसकी मसल्स को एक बार थकना ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, मसल्स हमेशा थक कर ही रिलैक्स महसूस करते हैं। तो खेलने के लिए उसको रोकिएगा नहीं, खेलने तो ज़रूर दीजिएगा। हाँ, दूसरी बात है, खाने के लिए आप उसको खाने की वैल्यू समझाइए धीरे धीरे कि खाने की वैल्यू क्या है, खाना किस तरह से उसे, जब वो बड़ा आदमी बनेगा तो किस तरह से खाने से आने वाली एनर्जी उसके लक्ष्यों को पूरा करेगी, किस तरह से, अगर उसका कोई एंकर है बहुत बढ़िया सा जिसको वो रोल मॉडल मानता है, उसका नाम लेकर उसे कई बार मोटिवेट करिए कि देखिए आप ऐसे ही बनोगे जब अच्छा खाना खाओगे। दूसरा, पढ़ने की जहाँ तक बात है, आप बच्चों के साथ बैठिएगा। उसके लिए जब आप किसी भी कार्य को किसी बच्चे के लिए आसान और क्रिएटिव बना देंगे, मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप अपने बच्चों के लिए किसी भी कार्य को करने लायक, आसान व क्रिएटिव बना देंगे, आपका बच्चा उसे ज़रूर करेगा। गड़बड़ ये हो गई है
कि बच्चे को हम रटकर पढ़ाने की कला सीख गए हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट खुद मानते हैं कि रटकर कभी भी नहीं पढ़ा जाता। रटकर हमारी मेमोरी सबसे ख़राब मेमोरी होती है। पर हमने उन तकनीकों को सीखा ही नहीं कि किस प्रकार से वो एक बार चीज़ों को देखकर पढ़ सकता है, एक बार वो अपनी स्पेलिंग्स को याद कर सकता है। सोचिए अगर वो लर्निंग हल्की सी उसको डिसेबिलिटी आ रही है, जिसका नाम डिसलेक्सिया है या डिसग्राफिया है, तो आप उसके वर्ल्ड को समझिए थोड़ी देर के लिए। मैं उस वर्ल्ड, उसकी दुनिया को मैं समझता हूँ, एक लाखों स्टूडेंट के साथ हेल्प की है। वो सचमुच में उसकी कंफ्यूजिंग है, वो वर्ड सारे के सारे, वो लेटर्स सारे के सारे उसके लिए कंफ्यूजिंग है, वो नहीं समझ पा रहा उनको। और वहाँ से आए हुए तनाव को वो टीवी देखकर या फिर खेलकर ही तो निकाल सकता है। तो आप बच्चे की स्ट्रेटेजी को समझें। अगर आपका विजुअल बच्चा है तो उसकी विजुअल ब्रेन स्ट्रोंग होगा, ऑडिटरी शब्दों से सीखेगा, आवाज़ों से, लेकिन काइनेस्थेटिक फीलिंग से सीखेगा। आप इमीडिएटली मत कहिएगा कि वो नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ना चाहता है। वो पढ़ना तो चाहता है, पर उसके पास अनुभव या रेफरेंस ऐसे आ रहे हैं कि वो नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को नंबर 1 पढ़ने लायक बनाए, लर्न करने लायक बनाए, नंबर 2 क्रिएटिव बनाए और सादा आसान बनाए। छोटे छोटे चंक में तोड़ने की कोशिश करें अपने कंटेंट को, और चंक में, टुकड़े में तोड़कर उसे लर्न कराएं। निश्चित रूप से वह अपने प्रयासों में सफल जरूर होगा। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की। टीचर्स भी इस पर थोड़ी जिम्मेदारी भरा अपना जो बिहेवियर है वो बनाएं। तो हम जानते हैं कि अभी जो नए नए अभ्यासक्रम आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी लेंदी रहते हैं। इसमें काफ़ी छुट्टियां होती है, छोटा सा वक्त होता है। तो एक टीचर जब अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जाता है तो उसे अपने सब्जेक्ट को भी न्याय देना होता है और कोर्सेज भी पूरे करने होते हैं। और जितने भी बच्चे हैं क्लासरूम में, शायद 50 तो रहते ही होंगे, तो 50 बच्चों के जहन में भी ये बात भी डालनी है कि किस तरह का वो पढ़ाते हैं। तो किस तरह से एक अच्छा टीचर बनता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, जब हम कहते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ लर्निंग, बच्चे की एक लर्निंग स्ट्रेटेजी, उसकी लर्न करने की एक रणनीति है। अगर आप उस रणनीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रहा है कि जो रणनीति टीचर की पढ़ाने की है वो डिपेंडेंट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। असलियत में कई बार हम टीचर्स की, मैं भी एक टीचर रहा हूँ, अभी भी मैं एक टीचर ही हूँ। जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। अगर कहीं फेल हो रहा हूँगा तो मेरी टीचिंग डिसेबिलिटी भी है। तो मुझे ये कहना है अपने टीचर्स से कि आज अनेकों तरह के इतने बढ़िया से तरीके निकल गए हैं जिससे आप अपने बच्चों को मेमोराइज करा सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% कंटेंट्स एक बार में वो पढ़कर या देखकर चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं। हाँ, ये हमारे लिए एक चैलेंज की बात है कि एक हमारे पास लिमिटेड समय है, पर अगर हमारे टीचर और हमारे पेरेंट्स एक प्रॉपर होमवर्क करके जाएं तो ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिन्हें बच्चे बहुत लाइक करते हैं। और उन टीचर्स की एक खास बात आप पाएंगे कि वो हमेशा एक मेटाफोरिकली पढ़ाते हैं। इस वर्ड को मैं फिर बोल रहा हूँ, वो टीचर्स चीज़ों को मेटाफोरिकली पढ़ाते हैं। मेटाफोरिकली का मतलब है वो किसी भी सब्जेक्ट में एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी रेलेवेंट, इतनी टू द पॉइंट होती है कि बच्चे उन स्टोरीज़ के साथ जुड़कर अपने कंटेंट को याद कर लेते हैं। याद रखिएगा, हमारा माइंड इन स्टोरीज से बहुत तेज़ी से लर्न करता है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर। अगर आप किसी चीज़ को लर्न कराना चाहते हैं तो एक होमवर्क तैयार करें और आप अपने कंटेंट को एक स्टोरीज़ के साथ जोड़ें। जैसे ही वो एक लाइव स्टोरी के साथ जुड़ेगा, उसका पूरा का पूरा माइंड बगैर किसी चीज़ को डिलीट करे और डिस्टोर्ट करे उन चीज़ों को ले रहा होगा। अगर आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हैं तो जो कंटेंट्स हैं वो बच्चे के लिए बगैर आत्मा का एक कंटेंट है। मतलब उस कंटेंट में शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। उसी तरह से कि जैसे कि आपने कि खाना तो खा लिया लेकिन स्वाद नहीं था, तो स्वाद बनाने के लिए ये टीचर के पास एक कला होनी चाहिए। पर गड़बड़ ये भी है कि कई बार हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते और हम अपने सब्जेक्ट में अगर हमने टॉप किया है टीचर ने, तो वो ये मानता है कि बस उसी की जो भी रणनीति है पढ़ाने की वही बेस्ट होगी। नहीं, हमारे बच्चों की रणनीति सीखने की अलग है और हमें उसी की रणनीति पर सिखाना होगा। बेस्ट टीचर मेरे विचार से वो है जो अपने कंटेंट्स को, जो अपने सिलेबस को आसान और क्रिएटिव बनाकर
बच्चे के माइंड में रखकर वापस आ जाए, उसे ही मैं कहूँगा कि वो एक सक्सेसफुल टीचर है। जी, हमारी बातों में रोल मॉडल की भी एक बात आई। जब बच्चा छोटा होता है उसे पूछा जाता है कि आपको कौन सबसे प्यारा है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो शायद उसके परिवार में से ही कोई रहता है, मम्मी पापा या उनके दादा दादी। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे शाहरुख खान या सलमान खान अच्छे लगते हैं। तो रोल मॉडल अचानक से क्यों बदल जाता है? याद रखिएगा, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है बच्चों को, और उस एक्सपोजर की वजह से उसके रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बिकॉज बचपन में उसका रोल मॉडल था कि उसकी उंगली कौन थामेगा, उसको कौन सिक्योरिटी देगा। जी, सुरक्षा सबसे बच्चे के पास जो जब चाइल्ड स्टेट में होता है तो उसकी सुरक्षा ही उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है, चिंता होती है। और वो सुरक्षा और प्यार दो चीज़ चाहता है। वो सुरक्षित रहना चाहता है और वो प्यार पाना चाहता है। उसके बाद उसका जो प्यार का और सुरक्षा का नज़रिया बदल जाता है डिफरेंट तरीके से, कि वो एक फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, और वो एक रोल मॉडल को बदल लेता है उस वक्त। यहीं पर एक हम पेरेंट्स की गलती हो जाती है कि हम अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं बनते, और उन रोल मॉडल की कमी की वजह से सोचिए कि अगर मैं अपने बच्चों का हीरो नहीं होऊंगा तो फिर आप जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो उनके हीरो बन जाएंगे, और कई बार उन्हीं के फ़ोटो, उन्हीं हीरो के फ़ोटो हमारे बच्चों के कमरे में होंगे, और उनमें से कई हीरो तो शर्ट भी नहीं पहनते हैं, बगैर शर्ट के लगे होंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स जब पैसा कमा रहे हों, अपने प्रोफेशन को कर रहे हों, और वो पेरेंटिंग में जैसे वो माँ या बाप बने, उससे पहले एक तैयारी करें कि वो अच्छी कहानियाँ पढ़ें। कहानियाँ पढ़ने का उनको कहानियाँ बोलने का एक तरीका आना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ अच्छी कहानियाँ के साथ जुड़ेंगे। जितनी कहानियाँ और जितने भी अच्छे रेफरेंस आप अपने बच्चों को देंगे, उन्हें शायद बाहर के हीरो या हीरोइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपने बच्चों के हीरो बन जाएंगे तो याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है आपके जीवन में भी और आपके बच्चों के जीवन में भी। क्योंकि अगर आप उनके हीरो नहीं हैं तो फिर दुनिया उनका हीरो बन जाएगी, और वो अपनी तरह से आपके बच्चों को अपना फॉलोअर बना लेंगे, और आप एक मूक दर्शक बने रहेंगे, और जो बहुत अच्छी बात नहीं है। जी, किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के हीरो बने रहेंगे? वही बात है कि सबसे पहली बात कि जिन चीज़ों को वो बाहर देख रहा है, क्या वो अपने पेरेंट्स में उनको मिल रही है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी। मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि जिसे समझा जा सके। अगर आपके बच्चे आप ही को नहीं समझते हैं तो कोई ना कोई कंटेंट आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, पर्सनैलिटी का एक पहलू है कि जो समझने लायक नहीं है, या जिसे नहीं समझा जा सकता। आप अपने बच्चों के साथ जितने अच्छे मित्र बनेंगे तो उन्हें बाहरी मित्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक मदर हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी बेटी को हमेशा बहुत क्लोजली उसकी मित्र बने, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ये गलत बात हो रही है। आप अपनी बच्चियों को पूरी तरह से आलिंगन में लें। अगर आप एक माँ हैं तो ये माँ के लिए है कह रहा हूँ, वो अपनी बच्चियों की सबसे अच्छी मित्र बननी चाहिए। जब उस बच्ची को किसी भी इमोशनल लगाव की ज़रूरत पड़ रही है, जो पड़ेगी, तो उसे सबसे पहले जो टच याद आना चाहिए, जो पहलू याद आना चाहिए, वो अपनी माँ का आना चाहिए। और माँ को ऐसे में सब तरीके से याद आना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए कैसे वो किस चीज़ों से हमारी बच्ची गुजरेगी, तो उस तरह से वो गाइड कैसे करे, उसकी लैंग्वेज कैसी हो, उसकी भाषा कैसी हो, वो किस टोन में बात करे, बात करते हुए क्या क्या मैसेज या संदेश दे अपने बच्चों को। आज हमारे पास गड़बड़ ये होगी कि जहाँ देने के लिए है भी कुछ नहीं ज़्यादा, हम देने के लिए पैसा दे देते हैं बच्चों को, सहूलियतें देते हैं बस। याद रखिएगा ये दोनों को इसको हम अपने ग्रुप में हम इसको क्या करते हैं, तो एक गिल्ट मनी है। यानी कि आप अपने सब बच्चों को क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उनको कोई वैल्यू या संस्कार दे पा रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ पैसा दे रहे हैं। अब वो पैसे से आप क्या खरीदेंगे तो फिर उनके ऊपर है ना। तो आप हमेशा अपने बच्चों को अपने संस्कार की बात करें, उनके फ़ायदे की बात क्या है, उनके बारे में जुड़ें, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ कहानी शेयर करिए, तो नेचुरली और आप उनको स्वतंत्रता भी दीजिए। जैसे आप ये स्वतंत्रता देंगे तो वो नेचुरली एक नए तरीके से चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आपकी वैल्यूज़ उनके पास खड़ी होनी चाहिए कि जब भी वो कोई भी कार्य कर रहे हो तो ऐसे में वो आपके जीवन की वैल्यूज़ को, मानव मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को भी सामने रखें। यही एक तरीका है। जी सर, कतार गांव से कानन भाई हमसे ये सवाल कह रहे हैं कि जब दो बच्चे हो और पहले जब एक बच्चा होता है तो वो पहला ही रहता है, और उसके बाद जब दूसरे बच्चे की एंट्री होती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब जो उसे प्यार मिल रहा था वो बढ़ जाएगा।
तो दो बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए ताकि दोनों बच्चों को ऐसा लगे कि उनके माता पिता उनके साथ हैं? आनंद भाई ने ये बहुत ही खास सवाल पूछा है, मैं इनको बधाई देता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जब पहला बच्चा मैंने उस प्यार को ले रहा होता है, अचानक दूसरे बच्चे की एंट्री होती है और एकदम से ऐसा लगता है कि पहले बच्चे को नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है। उसे ये लगता है कि मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है और यहाँ से एक बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ी इवेंट है उसके लिए, ये बहुत बड़ी घटना घट रही है। अचानक उसके जीवन में जितना सब कुछ चल रहा था, अचानक वो किसी और के शेर चला जाता है। ऐसे में कई बार सिबलिंग राइवलरी, यानी कि हम अपने भाई बहनों से ही आंतरिक रूप से घृणा करने लगते हैं, आंतरिक रूप से, यानी कि सबकॉन्शियसली। इसको हम सिबलिंग राइवलरी भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन है और ये राइवलरी यानी कि ये दुश्मनी बहुत लंबे समय तक चलती है, कई बार तो ये बुढ़ापे तक चलती है। ऐसे में यहाँ भी पेरेंटिंग का ही रोल है। जब आपको दूसरा बच्चा आ रहा हो, ऐसे में आप पहले बच्चे के साथ फिर कम्युनिकेट करें, उसकी उम्र को देखते हुए उसे बताएं कि आज हमारे घर में इस तरह से आएगा, वो आप हमारे घर में एक बच्चा आएगा, वो आपको इस तरह से आपके साथ उसके रिलेशन होंगे, वो आपकी जगह नहीं छीनेगा, आपको उतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए, चूँकि वो बहुत छोटा होगा, तो मुझे भी और आपको भी, उस बच्चे को भी लेना है, हमें सबको देख रेख करनी पड़ेगी। यानी कि आप उसे पहले मेंटली तैयार करेंगे। उसके लिए बच्चे का आगमन एकदम से यूनिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूनिक आते ही उसे लगेगा कि ये कौन आ गया, मेरा प्यार कहाँ गया। ऐसे में बच्चे के साथ आप कम्युनिकेट करें। थोड़ा सा अंतर इसीलिए ज़रूरी भी है कि बच्चा उस चीज़ को समझे कि अब मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी आएगी और एक मेरे लिए खिलौना भी आएगा। फिर ऐसा नहीं होगा, उसको वो स्वीकार करेगा। और पेरेंटिंग के दौरान करते हुए आप उस बच्चे के साथ पूरी तरह से कम्युनिकेट करते रहें कि उसने कुछ नहीं खोया है, बल्कि उसने पाया है। दुख उसको तभी होता है जब उसको लगता है कि मैंने कुछ खोया है। ऐसे में पेरेंटिंग को एक और बात ध्यान रखनी है कि सारे ही लोग एक ही बच्चे की तरफ अगर निगाह रखेंगे तो उसे लगेगा कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो आप जब बात करें उसे भी साथ रखें, उसके साथ भी खेलें और छोटे बच्चे के साथ भी खेलें, फिर उसे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। जी, टेक्नोलॉजी का युग है, तब रमेश भाई पूछ रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे, और अगर हाँ दे तो किस तरह से उसका ख्याल रखें? रमेश भाई बहुत अच्छा सवाल किया है। ये तो एक चैलेंज आ गया, अगर नहीं भी देंगे तो बच्चे को लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, उसकी आंतरिक छवि खराब होगी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ स्टीम खत्म हो सकती है। अगर देंगे तो बहुत सारे चैलेंज है, फिर आपको नई टेक्नोलॉजी का देना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कई बार वो उसका दुरुपयोग भी करेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ जितना आपका तालमेल गहरा होगा वहाँ से बात शुरू करते हैं। मोबाइल से नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ आपका कितना गहरा तालमेल है, आप उसके कितने क्लोज हैं, वो कितनी बातें आपकी फॉलो करता है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है आपको, अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ वो मिसमैचर है। तो अब आप नहीं भी देंगे तो कहीं और देखेगा, देंगे तो वो आपकी बात मानेगा नहीं। तो सबसे पहले जब आप पेरेंटिंग की बात करते हैं तो आप अपने बच्चों के रियली उसके साथ तालमेल में रहिए, उसके यकीन को जीतिए, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान भी दीजिए और फिर उसे कहिए कि देखिए आप एक समय से एक समय तक टीवी देख सकते हैं और उसमें ये चैनल आप देख सकते हैं, डिस्कवरी देख सकते हैं, आप दूसरे हमारे जो चैनल हैं अच्छे उनको देख सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब इस समय से इस समय तक आप इस मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। गड़बड़ ये होती है कि अगर वो मोबाइल पर जुड़ा हुआ है तो उस वक्त कई बार वो उन सोशल वेबसाइट के साथ जुड़ा है, तो जब वो पढ़ेगा उसे लगेगा कोई मेरे लिए कोई मैसेज आ रहा है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसके दिमाग में हमेशा एक ही मसला चल रहा होगा कि चलो मैं अपना मोबाइल उठा कर देखता हूँ। मैं बार बार वो मोबाइल खोलेगा और बार बार मोबाइल खोलेगा तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। ऐसे में आपको बचा कर रखना है, देना भी पड़ सकता है आपको, क्योंकि आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। अवॉइड करेंगे तो वो चारों तरफ देखेगा, उसे लगेगा मैं ही अलग तरह का इंसान हूँ, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। ऐसे में उसको हीन भावना का शिकार हो सकता है और अगर आ रहा है तो भी वो गड़बड़ कर सकता है। ऐसे में सवाल इसका है कि आपका अपने बच्चे के साथ कितना गहरा तालमेल और संवाद की गुणवत्ता क्या है। इसीलिए 21वीं शताब्दी में बच्चों को पालना सचमुच में एक कला है और ऐसे में अगर आप एक पेरेंटिंग कर रहे हैं और पेरेंटिंग के पहलू को नहीं सीखा तो आप समझ लीजिएगा कि फिर गड़बड़ होने के काफ़ी चांसेस हैं। इसीलिए पेरेंटिंग की किताबें पढ़िए,
तरीके ढूंढिए, काउंसलर से मिलिए, नई तकनीकें सीखिए, क्योंकि पहले 10 से 12 साल उस बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जिसमें वो पूरे करियर की नींव डालेगा। अगर ये 10-12 साल खराब हो गए तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा कर भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उस बच्चे को इन पैसे को संभालना नहीं आता, खराब कर देगा, बनाना नहीं आता, बचाना नहीं आता, और वो गलत आदतों में पड़ चुका होगा। ये एक चैलेंज आपके सामने आएगा, इसलिए आपको पेरेंटिंग के पहलू जानने ही होंगे। पेरेंटिंग की हमने काफ़ी बातें की, चूँकि पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो फैमिली वैल्यूज़ पर था, पर अभी तक की बातें पेरेंटिंग पर ही चल रही थी। इतने में मेरे पास काफ़ी सवालात आ चुके हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पर है। उस बात पर आए तो धवल भाई कावड़िया नानावराछा से पूछ रहे हैं कि उनका अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। प्यार तो बरकरार है मगर झगड़ा होता रहता है, क्या करें? धवल जी, ये बहुत ही खास रिश्ता है, तो इस खास रिश्ते को छोटी छोटी बातों से खराब ना करें, खास बातों से भी ना खराब करें, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि याद रखिएगा, रिश्तों का जो रस है वो सबसे मीठा होता है, इसे बनाए रखिएगा। आपको कई चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बताऊँगा। जीवन में याद रखिएगा, आप कभी भी अपने नज़रिए से चीज़ों को मत देखिएगा सारे के सारे। हमारे दिमाग में रिश्तों की महत्वता तब ख़त्म हो जाती है जब हम पहले से ही एक अपनी तस्वीर बना लेते हैं कि दूसरा आदमी इस दिन इस वक्त ऐसा उसे करना चाहिए। मैं अभी एक काउंसलिंग कर रहा था, तो उस लेडी की एक ही प्रॉब्लम थी, उस पत्नी की प्रॉब्लम थी कि सर इनको पता ही नहीं चलता, इनको ये पता रखना चाहिए कि फलां दिन पर कौन सा फूल देना है, कौन से फला दिन पर कौन सी कॉल करनी है, मैं कॉल करूंगी तो कौन सी आपको मैसेज भेजना है। और मैं हंस रहा था कि देखिए कितनी छोटी चीज़ों पर इन्होंने कितना बड़ा मसला बना लिया है। आप ये समझ लिए कि जैसा वो व्यक्ति है उसे उसी तरह से स्वीकार करिए। आप ये समझिए कि आपने जगह पर एक जगह लिखा होगा, जगह के कार्य प्रगति पर है, जब आप सड़क पर जाते हैं, मनुष्य भी बिल्कुल उसी तरह से है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है। परफेक्ट मत देखिए उसमें, गड़बड़ ये हो रही है। अगर मैं और थोड़ा सा पति और पत्नी के रिश्ते में बोलना चाहूँ तो मैं आपको एक छोटी सी कला सिखा रहा हूँ। पहले तो आप ये स्वीकार करिए कि जो भी आदमी या महिला है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कार्य प्रगति पर है, पूरी तरह से हाईवे नहीं बना है, परफेक्ट नहीं बना है। नंबर एक, हम मनुष्य अपनी पास्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। हो सके पास्ट में हमारे भूतकाल में बहुत डर हो, ख़राब मेमोरी हो, हमें अब्यूज़ किया गया हो, हमें डिस्कम्फर्ट हो, हमें वहाँ पर बहुत सारी गिल्ट पड़ी हो, हमारे पास वहाँ बहुत सारी बेचैनी पड़ी हो। उन पास्ट को लेकर हम यहाँ तक आए हैं और अचानक हमें एक रोल में डाल दिया जाता है, और रोल है पति का या पत्नी का। यानी कि रोल तो परफेक्ट है, अब पति है तो उसे ये करना चाहिए, सबको क्लियर कर दिया, 20 रूल बना दिए उसके लिए। पत्नी है तो उसे ये 20 रूल करने चाहिए, ये चाहिए, क्लियर कर दिया। लेकिन उस रोल को जो निभा रहा है वो तो इम्परफेक्ट आदमी है, वो तो अधूरा है। सोचिए कि आपने मैराथन तो परफेक्ट बना दी, ट्रैक तो परफेक्ट बना दिया जिस पर आप परफेक्टली दौड़ेंगे, लेकिन अगर पैर ही कटा हुआ है तो कैसे दौड़ेंगे? आप पहले ही समझिए कि हर इंसान के अंदर उसकी अपनी कोई विम्स हैं, सनक हैं, उनकी अपनी आदतें हैं, अपने उसके सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रहकर, उन सब लिमिटेशन में रहकर वो एक रोल को निभा रहा है। और जब चूंकि रोल को आपने परफेक्ट कर दिया और आदमी परफेक्ट है तो रोल को कैसे निभाएगा? तो आप उसको स्वीकार करिए। छोटी बातों पर उसको ये मत देखिएगा कि क्या गलती करी, उन्हें ये देखिएगा कि छोटी बातों को मैं किस तरह से समझा सकता हूँ। एक 1 मिनट की टेक्निक मैं बता रहा हूँ। जब भी आप अपनी पति या पत्नी से नाराज हों तो सबसे पहले अपने मूड को ठीक करें। मूड उसी वक्त नहीं बोलें। मूड को ठीक करने के लिए आप 10 से 0 तक उल्टी गिनती गिने, तब तक आप शांत हो चुके होंगे। और फिर एक चेहरे पर झूठी ही सही लेकिन ज़रूरी है एक स्माइल लाएं और उनसे कहें कि देखिए मैं बेहद आपसे प्यार करता हूं, पर मैंने देखा है कि आपने ये बिहेवियर किया है, आपने ये बर्ताव किया है। इस बर्ताव के ये 5 तरीके हो सकते हैं कि इस तरह से हो सकता था। अगर आपके पास ये 5 विकल्प बताने के लिए नहीं है या 4 विकल्प बताने के लिए नहीं है, फिर आपका कोई हक भी नहीं है कि आप उस पर टोका टाकी करें। तो जब भी आप टोका टाकी करें तो एक होमवर्क तैयार रखें। आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसे टोका टाकी करते हुए ये भी ना लगे कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या आप उसको नसीहत दे रहे हैं
ये रिश्ते नसीहत के लिए नहीं बने, एम्पावरमेंट के लिए बने हैं, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए बनाए हैं। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, सो कोई भी बिहेवियर परफेक्ट नहीं होता। आज है कल नहीं रहेगा, आज किसी बात को वो गलत कर रहे हैं, कल से ठीक कर लेंगे। पहले दिन आपने भी कोई कार्य किया, अगर आप एक पत्नी हैं या एक लड़की हैं, पहले दिन आपने भी जो चपाती या रोटी बनाई थी गोल नहीं बनी थी। जब आप पहले दिन साइकिल चला रहे थे, अगर आप एक पुरुष हैं तो पहले दिन आप भी गिरे थे। जब आपने चलना सीखा था आप भी गिरे थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैरामीटर बना दिए कि नहीं जो पहले दिन से जो चलेगा वही परफेक्ट बच्चा होगा। नहीं, 10 बार गिरेंगे, 20 बार गिरेंगे, फिर चलना सीख जाएंगे। रिश्तों को भी इसी तरह से लेना सीखें। सर, जब शादी के पहले के जो दिन होते हैं तो कहते हैं कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते, और जब शादी के बाद बातें आती है तो बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जब हमें शादी से पहले जब मिलते हैं तो हम वहाँ पर कई बार हम जैसा चाहते हैं मनुष्य को, वो इंसान को, हम वैसा देख तो लेते हैं, पर कई बार हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। हमें दूसरों की कमियां भी, उस दोस्ती की जो इमोशंस होती हैं, जो फ्रेंडशिप की इमोशन होती हैं, उन इमोशन के रहते हुए हम उसकी कमियों को भी पॉजिटिव देखते हैं। ठीक है ना, उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। एक समय आता है कि जब आप एक साथ रहने लगते हैं, आप बहुत कामों में फंसे होते हैं, कई बार तनावपूर्ण माहौल में आप अपनी पत्नी या पति का चेहरा देखते हैं, घर में तनाव का माहौल होता है, जीवन की वास्तविकता में आकर आपकी बहुत ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। कई बार वो ज़रूरतें शादी से पहले पता नहीं होती, क्योंकि शादी से पहले तो आपको एक दिन के लिए मिलना है, 1 घंटे के लिए मिलना है, तब आपके पास कोई रेस्टोरेंट होता है, तब आपके पास अच्छी सी ड्रेस भी होती है, एक बढ़िया सा डिओ भी पहन के जाते, लगा कर जाते हो। लेकिन जब रियल वास्तविकता आती है, 24 घंटे जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, संबंधों में सामाजिक रिश्तों को निभाना पड़ता है, तो एक तनाव आने लगता है। उस तनाव में एक दूसरे से हम अपेक्षा करने लगते हैं। उन अपेक्षाओं में वो उससे करता है, वो उससे करता है, और ऐसे में उसे लगता है कि यार ये तो पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा, ये तो कोई अलग है, मैं तो फंस गया। और वहाँ से ये भावना आने लगती है, और वहाँ से वो अलगाव की भी बात सोचने लगते हैं। ऐसा ना करें, उसे उसी तरह से लें कि ये बर्ताव मात्र है इस आदमी का। ये आदमी अलग है, बर्ताव अलग है। पहले तो आप ये समझिए, आदमी अलग है और बर्ताव अलग है। बर्ताव कभी भी बदल सकता है। जैसे आदमी की मानसिक या मनोदशा बदलती है, उसका बर्ताव बदल जाता है। तो आप अपने पार्टनर की मनोदशा को अच्छी रखिए, उसके बर्ताव बेहतर रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ एक लिमिटेशंस हैं बर्ताव में, कई बार वो ऑब्सेसिव बिहेवियर आ जाते हैं। उसके लिए आप उसकी काउंसलिंग कराइए, एक सहारा लेना शुरू करिए, किताबें पढ़िए अच्छी तरह से। गड़बड़ ये हो रही है कि जब भी हम पति बनते हैं या पत्नी बनते हैं, हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। अचानक एक घटना घटती है जिसका नाम है शादी, और एक आदमी पति बन जाता है, एक पत्नी बन जाता है, और एक रोल को जीने लगता है। हमने ट्रेनिंग कोई नहीं ली, और अचानक आपने एक रोल को पूरा कर दिया। कमाल है कि आपने कथक नहीं सीखा और कथक करना शुरू कर दिया। आपने क्रिकेट सीखा ही नहीं और आप टीम में शामिल हो गए और आप बैटिंग करने लगे। कैसे कर लेंगे? गड़बड़ तो होगी ना। इसीलिए ज़रूरी है आज की तरह की। और इस तरह इससे आगे भी जाइए कि आप साल 2 साल बाद अचानक एक सुबह आपको खबर मिलती है कि आप बाप बन गए। आपने कोई ट्रेनिंग ली? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अब सोचिए कि जब आपके पास ही कोई ट्रेनिंग नहीं है तो एक नए बच्चे को आप कैसे ट्रेंड करेंगे? गलती हम भी पहले भी कर रहे थे, उन्हीं गलतियों से तो उस बच्चे को ट्रेंड करेंगे। फिर गलतियां तो फिर भी होंगी। इसीलिए आज आप देखेंगे पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी कला बन चुकी है। बहुत लोग पेरेंटिंग की कला को सिखा रहे हैं। उनके नज़रिए से सीखिए, रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप को सीखिए, एक दूसरे को कैसे स्वीकार करें इसे सीखिए। जब आप अपनी खुद को स्वीकार करेंगे तो आप सामने वाले आदमी को स्वीकार करेंगे। खुद को स्वीकार करना सीखिए, आप अपने पार्टनर को, आप अपनी पति को या पत्नी को भी स्वीकार करना सीखेंगे। जी, हमने मोबाइल की बात की थी। मोबाइल बच्चों के हाथ में दिया जाए या ना दिया जाए, पति अपने काम से घर पर जब रात को आता है तो उसे ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान है, अब थोड़े देर मोबाइल के साथ बैठा जाए, और पत्नी को ऐसा लगता है कि पति मेरे साथ पूरा दिन तो नहीं रहे, अब रात का वक्त मिला तो वो मोबाइल के साथ बिताते हैं। तो ऐसा जो होता है क्यों होता है, और इसका क्या रिप्लाई हो सकता है? स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए? हाँ, रिप्लाई ये है कि पत्नी को भी कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि वो मोबाइल से का जो पैटर्न है जो मोबाइल का देखने का पैटर्न है पति का, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी भी कुछ ऐसा खास नहीं है घर में, या कोई ऐसा माहौल नहीं बना है कि वो अपने उस तनाव को जब घर में आ रहा है, उस तनाव से डी स्ट्रेस यानी कि तनाव मुक्त हो रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर मोबाइल पर ही आएगा।
ऐसे में आपको अपने वातावरण को तरोताज़ा बनाना है, नए तरीके ढूंढने हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने के तरीके ढूंढने हैं। और हस्बैंड को भी चाहिए कि जो उसके पास समय है अब उसे एक क्वालिटी के नहीं बल्कि क्वांटिटी के साथ भी फैमिली के साथ बिताएं। और ये एक चैलेंज बन गया है क्योंकि दिन भर के मैसेज कई बार वो शाम को इतने ज़्यादा आने लगते हैं कि वहाँ पर उसको वो बच ही नहीं सकते हैं। ऐसे में ये बहुत बैलेंस बनाना ज़रूरी है और इसके लिए आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। कई बार हमें यही नहीं पता होता है, उस ट्रांस में हम चले जाते हैं, हम उस हिप्नोटिक कमांड ट्रांस में चले जाते हैं, हमें यही नहीं पता है हमने कितनी देर तक इस मोबाइल को देख लिया है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो कब कितनी देर से हमारा इंतजार कर रहा है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। आप मोबाइल के काम को जल्दी से निपटाएं और एक ऐसा वक्त दें कि साथ बैठें, बात करें। और जब आप सोने जा रहे हो या आपका पार्टनर सो रहा है या सो गया है, थोड़ा जो भी काम बचा है तब कर लें। ऐसे में उनको कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। पत्नी को भी चाहिए वो और ज़्यादा नए तरीके ढूंढे कि वो कैसे अपने पति के साथ जुड़े, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, किस तरह से वो माहौल को और खुशनुमा बना सके जिसमें वो टीवी से ज़्यादा अपने परिवार को या अपनी पत्नी को देखे या उसके साथ रहे। सचिन से भावेश भाई पूछ रहे हैं कि उनकी बीवी और उनकी माताजी यानी सासू और बहू उनमें सीरियल जैसा बर्ताव है, नहीं बनता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसे किस तरह से ठीक किया जाए और एनएलपी उसमें कुछ मदद कर सकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, सास बहू की लड़ाई तो नहीं कहेंगे, कई बार खींचातानी चलती रहती है। इसके कई कारण ये भी हैं कि हमने पहले से ही माना हुआ है कि ऐसा चलता है, हमारे घरों में सीरियल भी ऐसे दिखाए जाते हैं, उसी के बिलीव पड़ रहे हैं कि जी सास बहू की बनती नहीं। इस तरह के ये सीरियल नहीं देखे जाने चाहिए, इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करा जाना चाहिए। एक घर में आपकी पत्नी आई है, वो दूसरे घर को छोड़ कर आई है, साथ ही माँ पर वहाँ पर है, तो आप एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। अब इसके लिए दो काम करने होंगे। इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं या इसे हम परसेप्चुअल पोजिशंस कहते हैं। आप एक छोटा सा काम करें, जो भी आप हैं, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें। एक पत्नी सास को चाहिए कि आपके घर में एक बहू आई है, वो अपने परिवेश को छोड़कर आई है, अपनी पूरी फैमिली के वैल्यूज़ को पीछे छोड़कर आई है। उसकी परवरिश क्या रही होगी, उसकी क्या क्या चिंताएं हैं, उसका क्या क्या डर है, किस तरह से उसका मन नहीं लग रहा होगा, उसके अपने पुराने बिहेवियर हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे एक माँ का रोल खेलना होगा। अगर वो भी उसे एक नए तरीके से डिक्टेटर मिल गई तो याद रखिएगा, हम कभी भी पनिशमेंट से अब नहीं सीखते हैं। 21वीं शताब्दी में एक्सपोजर का ये ज़माना है, जगह जगह हम हजारों तरह से बिहेवियर देख रहे हैं लोगों के, उसमें सिर्फ आप रिवार्ड दीजिएगा। जैसे ही आपकी बहू या पुत्र वधू अच्छा एक्शन करे, उसके साथ जुड़िए, उसे रिवार्ड दीजिएगा। और वो गरा खराब भी करेगी, वो परफेक्ट है, बहू के रोल को ही तो वो निभा रही है तो वो एक लड़की जिसके पास बहुत सारी लिमिटेशंस या सीमाएं हो सकती हैं। उन सीमाओं को तो उसके रोल में दिखाई देंगे ना वो गड़बड़, तो आपको उस गड़बड़ को भी एक्सेप्ट करना है और उसे समझाना है कि देखिए इसको ऐसे किया जा सकता है। सिर्फ ताना ही मार देना, और ऐसे में एक गड़बड़ और भी होती है कि उसके उस ताने को वो उसके सामने तो ताना नहीं उसको नहीं बताती वो कभी बहू को गलती क्या है। कई बार वो इसके अलावा सबको उनका उसकी कमियों का पता होता है, पड़ोसियों को पता होता है, रिलेटिव्स को पता होता है, फ्रेंड्स को पता होता है। ऐसा ना करें, उसे बताइए कि ये गलती हुई है, मुझे लगता है आपकी दृष्टि से क्या ये गलती है। अगर वो कहेगी, अगर आप ढंग से बोलेंगे तो कहेंगे हाँ मुझे भी लगता है ये गलती हुई है, तो फिर आप उसे तरीके बताइए कि उस सिचुएशन में उसे क्या क्या करना चाहिए था। और अगर आपके पास तरीके नहीं हैं तो फिर आप उसको नसीहत देने के भी हक में नहीं, आपका हक नहीं है। दूसरे बहू को भी चाहिए कि माँ को और बेटे, उसने उस बेटे को बहुत दिनों तक पाला है, तो एक याद रखिएगा, माँ और बेटे का रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता। उनके बीच में वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो जन्म के दौरान काटी जाती है, सचमुच में वो इमोशनली कभी नहीं कटती, वो हमेशा जुड़ी रहती है। माँ अपने बच्चे को हर उम्र में एक बच्चे की तरह ही देखती है। ऐसे में एक बच्चे को कोई हैंडल करने लगे, उसे कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होता, आप ये कहेंगे, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ऐसे में आप उसे तय करवाएं, उसे ये बताएं कि मैं भी बेसिकली घर इस परिवार को ही आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ, और जितना आप देख रेख करती हैं अपने बेटे की, मैं इसकी कदर करती हूँ। कई बार बहू ये इससे इनसिक्योर हो जाती है कि ये तो मम्माज बॉय है। याद रखिएगा, बच्चा और माँ के बीच का रिश्ता तो मम्माज बॉय तो रहेगा,
ऐसे में या तो वो क्रांतिकारी बने, ऐसे में वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो अपनी माँ से ही क्रांतिकारी होकर रिश्ता तोड़ेगा तो वो नेचुरली एक दिन आपसे भी तोड़ सकता है, याद रखिएगा। तो आप ऐसा ना करें, उसकी बात को समझे कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पति का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी माँ का सास का पॉइंट ऑफ व्यू है, और जैसे ही हम तीनों लोग एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझे, मीन्स उसके नज़रियों को समझे कि इसके नज़रिए से मैं दुनिया को देखूं और मैं इसके नज़रिए से दुनिया को देखूं, तो आपके पास एक नई लर्निंग आएगी, नई सीख आएगी और आप जीवन को मज़े के साथ जिएंगे। फैमिली वैल्यूज़ में एनएलपी काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी डायरेक्शन से मदद रूप रहता है, हेल्पफुल रहता है। और आप अगस्त में एक बार आ रहे हैं सूरत में और फ्री वर्कशॉप देने वाले हैं, तो क्या उसमें भी फैमिली वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ आएगा? किस तरह से होगा सब, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सूरत में एक दिन की फ्री वर्कशॉप कर रहा हूँ। मैंने की थी पिछले महीने, जहाँ से करीब 600 लोगों ने अटेंड किए थे। ये पूरी तरह से एक दिन की वर्कशॉप होगी, ये सेमिनार नहीं होगा, पूरे एक दिन की वर्कशॉप होगी और ये पूरी तरह से फ्री होगी, जहाँ पर मैं एनएलपी की उन टेक्निक्स को सिखाऊंगा। कुछ टेक्निक्स को, सारी तो नहीं सिखा सकते, पूरी टेक्निक्स के लिए तो 5 दिन का कोर्स चलता है। तो एक दिन में कुछ टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। यह प्रोग्राम सूरत में 28 अगस्त को हो रहा है, शनिवार रविवार का दिन है, और ये संजीव कुमार हॉल में हो रहा है। इसमें आप 10 बजे आइएगा, 10 बजे से 4 बजे तक या 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, और बीच में आपके लिए फ्री लंच का भी इंतज़ाम है, आपको लंच भी वहीं मिलेगा। और आप एनएलपी की उन प्रैक्टिकल टेक्निक को सीखिएगा, तकनीकों को सीखिएगा, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए, मित्रों के साथ आइए। इसकी जानकारी करने के लिए या इसमें अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है ramvarma.com, www.ramvarma.com। તમે આ કાર્યક્રમને રિયલ ન્યૂઝ ચેનલની યુટ્યુબ ચેનલ પરથી પણ નિહાળી શકો છો, અને થોડા समय बाद वर्मा साहबनी यूट्यूब चैनल परથી પણ કાર્યક્રમને નિહાળી શકશો। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जो दर्शक हैं उनको फैमिली वैल्यूज़ में किस तरह से एनएलपी का उपयोग किया जा सके, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें समझाई, तो इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप सबको शुभ रात्रि, खुश रहिए।